and goes crazy for Chogan. Okay, so this chapter is about a very ancient story, the story of Akbar's time, King Akbar's times. Okay, this is the story. King Akbar के time की story है. There's a girl named Zeenat and there is a Chogan करके भी एक और हमारे पास एक character है. But we will study about the chapter in the next class. Today we will be doing the vocabulary part of the chapter. Children, have we done? Yes, we have not done the vocabulary part, right? Today we are about to do the vocabulary part, right? Just give me a thumbs up, everyone. Today we are on the vocabulary part of this chapter, chapter number 12. We have not done the vocabulary, right? We have not done the vocabulary. Yeah, so today we'll be doing the vocabulary. Aditya Vyas is raising hand. Yes, Aditya, what happened? Aditya, your camera is not on. हाँ आदित्य बोलिए. मैम चौगन कोई कैरेक्टर नहीं है, वो तो गेम का नाम है. Chogan, we will study about the chapter in the next character. Okay, today we will be doing the vocabulary only. Okay, मेरी voice सबको clearly audible है? सबको clearly audible है? Okay, okay Aditya, please mute yourself. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Who's that? I'm father of Aditya Vyas. हाँ sir बोलिए. Yes, ma'am. How are you? I'm good sir. बोलिए. Yes, Aditya's camera always should be on, ma'am. Yes, I request all the students the camera should be on. जो बच्चे हैं अपने आप ऑफ कर देते हैं, तो आप भी वो ध्यान रखिए प्लीज कि कैमरा ऑन करिए, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, बार बार ऑफ कर देते हैं. नहीं, इसको आप देखते रहिए, ये कैमरा इसका ऑन ही होना चाहिए. सर ऑन ही होना ताकि आप इसको ऑन होना चाहिए. मैं बार बार बोलती हूँ, बार बार मैं पूरी क्लास के अंदर नहीं बोल सकती सर. मैं 10 बार बोल देती हूँ, 10 बार ऑफ कर देते बच्चे. सो दैट इज अप टू यू आल्सो. ओके, प्लीज उन्हें बोलिए कि कैमरा ऑन रखिए. ये कभी बंद करे तो मैं वापस पूछूंगा आपसे, मुझे बताना आप. जी श्योर. ठीक है ना मैम. ओके, थैंक यू मैम. Okay, so let's begin. Aditya, please mute yourself. Okay, so we are on the vocabulary part of the chapter and we will continue with the chapter in the next class, but today we will be doing the vocabulary. Okay, let's start with the vocabulary. Okay, the first one is passionate. Okay, when someone is passionate about something, कोई किसी चीज के बारे में passionate होता है, मतलब बहुत उसको लेके excited होता है, बहुत किसी चीज में interested होता है. So that's how we say passionate कोई भी चीज को लेके. For example, I'm very passionate about English. मैं English के लिए बहुत passionate हूँ, मुझे English बहुत पसंद है, बहुत interested हूँ. Okay. Next one is enthusiast. Enthusiast is also, it also means the similar. Okay, when you are enthusiastic about something, when you are passionate about something, when you are interested in something. Okay, enthusiastic and passionate have a similar meaning. Okay, enthusiastic about something, when you are, that means when you are interested in something, when you are excited about something. Okay. Next one is sneak. ठीक है, स्नीक करना किसी भी चीज में, व्हेन यू ना स्नीक इनटू समथिंग, मतलब किसी टू स्लाइड इनटू समवन. फॉर एग्जांपल वी हैव स्नीकर्स, राइट? जैसे हमारे पास स्नीकर्स होते हैं. स्नीकर्स को स्नीकर्स क्यों बोलते हैं हम? बिकॉज दे आर लाइक स्लाइडर्स. ओके, आप उसमें स्लाइड कर जाना, उसके अंदर घुस जाना टाइप के. ओके, स्नीक कर जाना, व्हेन यू नो समवन इज स्नीकिंग समवेयर, दैट मींस चुपके से कहीं पे भी घुस जाना, दैट मींस स्नीक. ओके. ओके, सो नेक्स्ट वन इज सुपरविजन. सुपरविजन किसी के भी अंडर में, किसी के भी देखभाल में, किसी की भी डायरेक्शन में, किसी की भी सलाह लेते हुए कोई काम करना, दैट मीन्स सुपरविजन. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द चिल्ड्रन वर स्टडिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर. जो बच्चे थे वो सारे पढ़ रहे थे किसके सुपरविजन में? टीचर के सुपरविजन में. तो सुपरविजन का मतलब क्या हुआ? टीचर की डायरेक्शन में, टीचर उन सब पे ध्यान रख रहे थे. ओके. नेक्स्ट वन इज मॉलेट. ओके, MALLET, मॉलेट. It's a big wooden hammer, so that we will see in the chapter. Mallet, this word is going to come in the chapter, then we will know, and then I'll show you the image of a mallet. Okay, next one is spectators. Spectators matlab jo, okay, some children are still joining. Children, please join faster. Okay, next, where were we? Yeah, we are on spectators. Spectators matlab ki jo ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज को देखना. ओके, जो देखने वाले लोग होते हैं उनको स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, जो दर्शक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्पेक्टेटर्स वर
cheering at the parade. जो spectators थे जो परेड को देख रहे थे, they were cheering at it. वो बहुत वहां पे तालियां बजा रहे थे, बहुत cheer कर रहे थे परेड को. नेक्स्ट वन इज डस्की. डस्की का मतलब शेड कम होना, किसी भी चीज का शेड लोअर होना, डार्क होना कलर में. ओके, दैट इज दिस कॉल्ड एज डस्की. ओके, डस्की मींस थोड़ा टुवर्ड्स ग्रे, टुवर्ड्स ब्लैक, दैट इज कॉल्ड एज डस्की. डार्क इन कलर, दैट मींस डस्की. ओके, फॉर एग्जांपल, इट वाज अ डस्की डे. इट वाज द डस्की in at 3 a.m. in the morning. So सुबह जो थी, it was 3 a.m. 3 बजे. It was dusky. The Mangalam, please enter faster. Children, please join faster. Okay, जो भी अभी भी जिन्होंने join नहीं किया है, please join faster. Okay, so where were we? Yeah, dusky we were. Okay, so dusky means dark in color. Okay, so the sky was dusky in the morning. Okay, so the सुबह जो sky था वो dusky था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था. Next one is thwack. How do you pronounce it? This is called as thwack. Okay, to thwack something, that means hit करना किसी भी चीज को, किसी भी चीज पे मारना, that is called as thwack. Okay, thwack, 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 that is. Fading, कोई भी चीज फेड हो जाना, कोई भी चीज कम हो जाना, किसी भी चीज का कलर कम हो जाना, किसी भी चीज का इफेक्ट कम हो जाना, that is called as fading. For example, the color of my टी-शर्ट फेडेड. ओके, मेरा टी-शर्ट का कलर जो था वो फेड हो गया, कम हो गया. द इफेक्ट ऑफ कोरोना हैज फेडेड. कोरोना का जो इफेक्ट है वो कम हो गया, कोरोना का जो प्रभाव है वो कम हो गया. ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रस्ट्रेशन. व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग, कोई भी चीज को लेके फ्रस्ट्रेट होना, बहुत इरिटेट होना, गुस्सा होना, दैट इज कॉल्ड एज फ्रस्ट्रेशन. ओके, फ्रस्ट्रेट होना मतलब गुस्सा होना. ओके, इरिटेट होना. Okay, for example, the teacher was frustrated at the students. जो teacher थी, that was frustrated at the students. वो बच्चों पे frustrated थी, बच्चों पे गुस्सा थी. Next one is hurried. हरी का ही second form है hurried. हरी करना मतलब जल्दी करना. Okay, जल्दी में कोई काम करना. In hastily when you do something, that is called as hurry. And hurried is also the second form and it means the same. जल्दी में कोई काम करना. For example, the teacher hurried to the class. जो टीचर थी वो जल्दी से क्लास में पहुंची. hurried मतलब जल्दी से कोई पहुंचना, जल्दी, hastily. Next one is shaking. Shaking means shake, कोई भी चीज shake हो रही है मतलब हिल रही है, vibrate हो रही है, that is means that calls shaking. Okay, for example, when during the earthquake the building was shaking. जब अर्थक्वेक आया तो पूरी बिल्डिंग जो थी इट वाज शेकिंग, वो शिवर कर रही थी, वो कांप रही थी, वाइब्रेट कर रही थी. नेक्स्ट वन इज रिप्रूफ. ओके, रिप्रूफ, आई गेस द मीनिंग इज नॉट करेक्ट हियर. रिप्रूफ, आई विल जस्ट, किसी को व्हेन यू नो किसी को आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, इट्स नॉट जस्ट द ब्लेमिंग. रिप्रूफ मींस किसी को आपने कोई रीजन था एंड यू गिव इट अगेन. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज रिप्रूफिंग. ओके, फॉर एग्जांपल, the students were not studying properly and the teacher reproved them. टीचर ने उनको रिमाइंड किया कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था. ओके, सो रिप्रूफ मींस किसी को रिमाइंड करना, कि किसी को ब्लेम करना कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, किसी को डांट लगाना. नेक्स्ट वन इज रीजनेबल. रीजनेबल मीन्स ठीक ठाक. ओके, उचित कोई भी चीज है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रीजनेबल. फॉर एग्जांपल, the prices were reasonable at DMart. DMart में जो prices है, DMart में जो चीजों के पैसे जो लगते हैं, प्राइस लगती है, वो रीजनेबल है, वो ओके है, ठीक ठाक है, उचित है. ओके, रीजनेबल को हम सिर्फ प्राइसेस के लिए नहीं यूज कर सकते, किसी और भी चीज, सिचुएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. ओके, सिचुएशन के लिए जैसे कि इट वाज क्वाइट रीजनेबल व्हेन वी वर बार्गेनिंग. जब हम बार्गेन कर रहे थे, बार्गेन का मतलब हम जब मोल भाव कर रहे थे, द प्राइस वाज क्वाइट रीजनेबल. ओके, रीजनेबल मतलब ठीक ठाक कोई भी चीज होना, उचित कोई चीज होना. नेक्स्ट वन इज परमिशन. परमिट करना किसी चीज को, किसी को अनुमति देना, किसी को परमिशन देना, किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ करना, दैट इज कॉल्ड एज परमिशन. फॉर एग्जांपल, द टीचर परमिटेड अस टू प्ले ड्यूरिंग द क्लास. टीचर ने हमको पीरियड के अंदर खेलने के लिए परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया.
Okay, 16th one is bad minded. कोई bad minded, so you can understand by the word itself. Bad minded मतलब थोड़ा खराब दिमाग का, मतलब कि खराब सोच रखने वाला, that is called as bad minded. Okay. Shakuni, for example, Shakuni was very bad minded person. Okay, Shakuni जो था महाभारत में, he was very bad minded person. वो बहुत छोटी सोच रखने वाला इंसान था, बहुत खराब सोच रखने वाला इंसान था. Okay, so next one we have, just wait children, yeah. So where it is, excellent. Excellent, you all know. Excellent यानी इसका कुछ एकदम perfect, when something is superb, outstanding, that is called as excellent. Okay. Perfect कोई चीज एकदम बिल्कुल अच्छा, that is called as excellent. For example, the teacher was very happy at the excellent performance of the students. Teacher जो थी बच्चों की excellent performance, एकदम बहुत ज्यादा अच्छी performance को देख के खुश थी. Next one is dismounting. ये एक ही word है, please इसको अलग अलग नहीं है. Dismounting, it is a single word. Okay, dismounting. किसी को डिसमाउंट कर देना मतलब उतार देना. ठीक है, कोई भी चीज कहीं पे चढ़ी हुई है उसको उतार देना. टू डिसमाउंट समवन. माउंट मतलब होता है चढ़ना, और डिसमाउंट मतलब उतार देना, कोई उतर जाना चीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर क्लाइंबिंग ऑन द स्लाइड एंड देन दे डिसमाउंटेड. जो बच्चे थे वो स्लाइड के ऊपर चढ़ गए थे एंड देन दे डिसमाउंटेड, वहां से उनको उतार दिया गया. नेक्स्ट वन इज beckoned. ओके, beckon करना किसी चीज को, मतलब किसी को इशारा करना, किसी चीज को किसी को बताना कि ऐसा मत करो, इशारे से when you beckon someone. ओके, फॉर एग्जाम्पल, I beckoned at the dog in the garden. मैंने जो डॉग था उसको beckon किया, मतलब कि उसको ऐसे, आप जो ऐसे करके बुलाते हो, that is called as beckoning. I beckoned at the dog in the garden. Okay, next one is seized. To seize something, कोई भी चीज grab कर लेना, कोई भी चीज पकड़ लेना, that is called as seizing. Okay. For example, I seized the first position in the classroom. I seized the first position in the class. मैंने जो क्लास की फर्स्ट पोजीशन थी वो सीज कर ली, वो पा ली, वो कोई जब्त मतलब अपने पास रख ली. सीज को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, किसी चीज को सीज करने के लिए वो भी आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, the police seized the money from us. पुलिस ने हमसे पैसे जो थे वो सीज कर ली, वो जब्त कर लिए, उनसे हमसे ले लिए. ओके, सो नेक्स्ट वन इज disappointment. Disappointment का मतलब बहुत उदास होना, सैड होना, निराशा होना, that is called as disappointment. For example, that student was not performing well in the class and the teacher was very disappointed. जो वो बच्चा था वो क्लास में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, और जो टीचर थी वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी, वो बहुत उदास थी, वो बहुत निराश थी. नेक्स्ट वन इज वेवरिंग. टू वेव का मतलब क्या होता है? वेव करना मतलब कुछ चीज हिलना. ठीक है, आप जैसे वेव करते हो मतलब कि आप हाथ हिलाते हो. ठीक है, तो योर हैंड इज वेविंग एट समथिंग. सो वेवरिंग इज ऑल्सो द वर्ब विच मीन्स समथिंग इज शेकिंग, समथिंग इज फ्लिकरिंग. कोई चीज हिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेवरिंग. For example, the flag was wavering in the sky. जो flag था, जो झंडा था, it was wavering in the sky. Okay, who is this guy who is coming late to the class? Harsh Sharma, please join the class faster. Okay, so where were we? We were on 23rd one. It irritated. किसी भी चीज को irritate करना, परेशान करना, गुस्सा दिलाना, annoy करना, that is called as irritated. So some students, for example, some students were disturbing the live class and the teacher was getting irritated. कुछ बच्चे जो थे वो live class में disturb कर रहे थे और teacher जो थी वो irritate हो रही थी. Next one is dizzy. Dizzy का मतलब कोई भी चीज क्लियर नहीं होना. ओके, डिजी मतलब कि जैसे आपको चक्कर आते हैं तो हाउ डू यू फील? यू फील डिजी, राइट? आपको बहुत अजीब सा फील होता है, एकदम धुंधला धुंधला सा फील होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिजी. फॉर एग्जाम्पल, when I climbed at a height, जब मैंने एक बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गई, I was feeling dizzy. तब आप मुझे वहां चक्कर आने लगे, मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा. डिजी का मतलब चक्कर आना, आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देना, अजीब सा फील होना. Next one is excitement. Excitement का मतलब when you're excited about something, when you are very happy about something, when you are enthusiastic about something. So enthusiastic और excitement दोनों एक दूसरे के क्या है? Synonyms हैं.
सिमिलर वर्ड्स हैं. जब आप किसी चीज को लेके बहुत एक्साइटेड होते हो, बहुत एनर्जेटिक होते हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, the students were very excited at the picnic. जो बच्चे थे वो पिकनिक पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा हैप्पी थे. नेक्स्ट वन इज ब्लर्ड. कोई भी चीज ब्लर होना, ब्लर का मतलब होता है धुंधला होना. ओके, ये कलंक नहीं है इसका मतलब, ब्लर का मतलब कलंक नहीं है. कोई भी चीज ब्लर कर देना, किसी भी कोई भी चीज का धुंधला हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, द इमेज the image on in the live class was very blurred. जो इमेज थी वो बहुत blurred थी, वो बहुत धुंधली दिखाई दे रही थी, ठीक से नहीं दिखाई दे रही थी. It was not clear. नेक्स्ट वन इज palanquin. जो पालकी होती है उसको ही हम palanquin कहते हैं. आपने एक फोन पढ़ी है? नो, इट्स नॉट इन योर क्लास, इट्स इन द अदर क्लास. palanquin का मतलब होता है पालकी. palanquin bearers फॉर एग्जाम्पल, जो पालकी उठाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं palanquin bearers. ठीक है, palanquin का मतलब है पालकी, जो बग्गी जो होती है जिसको उठाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पालकी. जैसे जिसमें दुल्हन जाती है फॉर एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड एज पालकी. Just wait for a second, children. My earphones are not working. Yeah. Next one is studded. Studded का मतलब किसी भी चीज के अंदर कोई चीज जड़ी हुई होती है. जैसे कि आपकी रिंग के अंदर एक डायमंड जड़ा हुआ है. कोई भी डायमंड जो है वो स्टडेड है, तो उसको हम बोलेंगे स्टडेड, यानी कि उसके अंदर लगा हुआ, उसके अंदर जड़ा हुआ. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द डायमंड वाज स्टडेड इन द रिंग. जो डायमंड था वो रिंग के अंदर स्टडेड था, रिंग के अंदर लगा हुआ था. Children, my voice is clearly audible to you. Just give me a thumbs up. My earphones are not clearly working. Children, just give me a thumbs up. My voice is clearly audible to you. Clearly audible? Okay, cool. Yeah, so where were we? We were on studded. Studded का मतलब किसी भी चीज में जड़ा हुआ. For example, ring के अंदर कोई चीज जड़ी हुई. The diamonds, the various gems were studded in the rings. Okay, जो ring के अंदर बहुत सारे diamonds, बहुत सारे जो gems थे वो उसके अंदर studded थे, उसके अंदर जड़े हुए थे. नेक्स्ट वन इज टर्बन. टर्बन मतलब पगड़ी, साफा जो होता है उसको हम कहते हैं टर्बन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द किंग वॉज वेयरिंग द टर्बन. जो किंग जो था उसने टर्बन पहन रखी थी, उसने पगड़ी पहन रखी थी. नेक्स्ट वन इज मैजेस्टिक. मैजेस्टिक का मतलब वेरी ग्रेट. ओके, कोई चीज बहुत ज्यादा ऑसम हो, बहुत ज्यादा आलीशान हो, बहुत बड़ी, ह्यूज. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज मैजेस्टिक. फॉर एग्जाम्पल, द पैलेस ऑफ द किंग वॉज मैजेस्टिक. जो किंग का जो पैलेस था, किंग का जो महल था, इट वाज मैजेस्टिक. वो बहुत आलीशान था, बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था. नेक्स्ट वन इज बूम्ड. ओके, कोई भी चीज बूम करना मतलब कि एकदम फुर्ती से आगे बढ़ना, बहुत तेजी से कोई चीज करना. एंड समथिंग थंडर्स. बूम का मतलब थंडर करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बाइकर बूम्ड एट वाज बूमिंग ऑन द बाइक. ओके, जो बाइकर जो था वो बाइक के ऊपर बूम कर रहा था, मतलब उस पर बहुत तेजी से निकल रहा था, फुर्ती से निकल रहा था. He was booming on the bike. Next one is hesitated. Hesitate करना है मतलब हिचकिचाना. Okay, आपको किसी चीज में हिचकिचाहट हो रही है, किसी में पूछने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, संकोच हो रहा है, that is called as हिचकिचाना, hesitating. For example, the student was hesitating to ask the question to the teacher. जो बच्चा था, जो student था, वो question पूछने में हिचकिचा रहा था. He was hesitating to ask the question. Okay, so this word you can use in your regular lives. What is that word? Hesitating. Hesitate करना मतलब हिचकिचाना. Okay, कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम में संकोच हो रहा हो कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, कोई भी काम मैं करूं कि नहीं करूं, तो उसको बोलते हैं हम हिचकिचाना. When you are not confident about something, that is called as hesitating. Can someone use this word in your daily lives, please? Can someone use this in a sentence? The word hesitated. Yes, children, please raise your hand and give me the answer for that. When can you use the word hesitated? Okay, Aditya is raising his hand. Yes, Aditya, please answer me. Ashok was hesitated to ask to the mayor of Savan Colony. Yeah, so Ashok was hesitated to play, or you can ask, you can use it anywhere. कि Ashok जो था उसको कोई भी चीज करने में hesitate हो रहा था. He was not confident enough. Okay, Aditya, please mute yourself. Okay, Anshul is raising his hand. Yes, Anshul, please answer me the question. Hesitate जो word है उसको use करिए please. I am very hesitated to play game. I was very hesitated to play badminton because I was not good at it.
कि मैं बैडमिंटन खेलने में बहुत हिचकिचा रहा था क्योंकि मुझे वो अच्छे से खेलना नहीं आता है. ओके, Anshul, please mute yourself. Anyone else can tell me the word hesitated in any line, any sentence, please? Should I unmute anyone? Or please just raise your hand. Harshita, you're raising your hand, but your camera is not on. Harshita, your camera is not on. हाँ बोलिए हर्षिता, please. Sunil was hesitated to ask me for the playing games. Yeah, those anyone you can be hesitate to do anything. Okay, Sunil was hesitated to ask me for my notes. Okay, anything. कोई भी चीज को लेके किसी को संकोच हो रहा हो, किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, that is called as hesitating. Okay, okay, Harshita, please mute yourself. Okay, we hesitated, we have done. Next one is steed. Okay, steed is not a steed, is not a horse. Okay, children, let me check the meaning of steed. STEED. I don't think it's a horse. Steeds are not horses. Let me just check the meaning. Wait. Okay, yeah, I thought it's a verb. Yeah, verb is a steeded जो verb है वो verb अलग है. Noun is the horse जिसको वो वाले घोड़े जिनके ऊपर राइड किया जाता है. Those are called as steeds. Okay. So स्टीड वो वाले घोड़े हो गए. एक तो है नॉर्मल घोड़े, अगर जैसे कि आपके जंगल में घूम रहे हैं, और स्टीड्स वो वाले घोड़े हो गए जिनके ऊपर आपने बांध के, जो जिन घोड़ों को आप राइड करते हो उसके ऊपर जैसे आपने अलग से बांध के रखा होता है, उसके ऊपर रस्सी लगी हुई होती है. सो दोज आर कॉल्ड एज स्टीड्स. जिन घोड़ों को हम चलाने के लिए यूज करते हैं, दौड़ने के लिए यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्टीड्स. ओके, सो नेक्स्ट वन इज कामली. कोई भी चीज काम का मतलब होता है शांति से. ओके, एंड कामली मीन्स पीसफुली, शांति से कोई चीज काम हुई, दैट इज कॉल्ड एज कामली. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं काम को यूज करूंगी, सो हाउ वुड आई यूज दैट वर्ड? द क्लास वॉज वेरी काम. जो क्लास जो थी वो बहुत शांत थी. एंड कामली को यूज करूंगी मतलब शांति से को यूज करूंगी. सो फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वॉज बिहेविंग वेरी कामली. जो टीचर जो थी वो बहुत कामली बिहेव कर रही थी, बहुत शांति से बिहेव कर रही थी, बहुत पीसफुली बिहेव कर रही थी. ओके, सो यू कैन differently use the words calm and calmly. It's one word only, but it can be used in different ways. Next one is embarrassment. We have already done the word embarrassment. Embarrassment का मतलब क्या होता है बताइए? You tell me the meaning. यहाँ ये असमंजस में डालना नहीं है embarrass का मतलब. Yes, you tell me. This is a shame. The meaning is given, but you tell me the meaning. आप कहाँ use कर सकते हो embarrassment? Don't Google it, just try answering. Embarrassment का, let me tell you the meaning. Embarrassment का मतलब आपको जैसे किसी चीज में शर्म आ रही हो, that is called as embarrassment. Okay, आपको किसी भी चीज में हिचकिचाहट हो रही हो. हिचकिचाहट, as we have already done, हिचकिचाहट का मतलब है hesitated. Embarrass मतलब कोई भी चीज में आपको खराब लग रहा हो, आपको शर्म आ रही हो, that is called as embarrassment. Okay. Okay, Aditya is raising his hand. Anyone else knows the meaning, please? Nikhil, I'm unmuting you. Your camera is not on, please. Nikhil, your camera is not on. Ma'am, when the teacher asked me a question, I can't give the answer, so I feel very hesitate. Yeah, I hesitate भी हो गया. आप Embarrassment. आप उसको similar जगह पे use कर सकते हो. The teacher asked me a question, but as I could not answer the question, I felt very embarrassed. Okay. Embarrassed मतलब जैसे कोई आपको कोई चीज आप नहीं कर पाए, कोई काम आप नहीं कर पाए, उसके बाद की जो फीलिंग होगी वो embarrassment होगी. और hesitate मतलब आपको कोई काम करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, उसके पहले की जो फीलिंग होगी वो hesitate होगी कि मैं ऐसा करने से हिचकिचा रहा था. ठीक है, ऐसा नहीं कर पाया तो अब मुझे embarrassment हो रहा है. ठीक है. Okay, please mute yourself. Nikhil is raising his hand. Yes, Nikhil, I'm unmuting you. Nikhil, your camera is not on. Please turn your camera on. Okay, Nikhil is not there. Shahzeb, I'm unmuting you. Please turn your camera on. Shahzeb Ahmed. Shahzeb, please turn your camera on. Ma'am, I feel embarrassment when I could not complete the task which I was given.
या सो एम्बैरेस्ड मतलब किसी भी चीज को आप नहीं कंप्लीट कर पाए तो उसके लिए आपको खराब फील हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज एम्बैरेसमेंट. आई फेल्ट एम्बैरेस्ड व्हेन आई कुड नॉट कंप्लीट द टास्क. ओके ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्पेल बाउंड. किसी भी चीज से स्पेल बाउंड होना मतलब एकदम मंत्र मुग्ध होना, मतलब आप कोई भी चीज आपको इतनी अच्छी लगी दैट यू वर वेरी फैसिनेटेड टू सी दैट, when that you were very fascinated to feel that. Spellbound मतलब बिल्कुल किसी आपके ऊपर एक जादू सा हो जाना, बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाना, that is called as spellbound. जैसे कि हम कोई बहुत सुंदर चीज देखते हैं, बहुत अच्छी चीज देखते हैं, तो उसको देख के आप spellbound हो जाते हो, आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, that is called as spellbound. For example, when I saw a white tiger in the for example, when I saw the white tiger in the zoo, I was spellbound. जब मैंने जू के अंदर व्हाइट टाइगर देखा, व्हाइट कलर का, सो आई वाज स्पेल बाउंड, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था. आई वाज स्पेल बाउंड. ओके, स्पेल बाउंड मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना. कैन यू यूज दिस वर्ड इन योर सेंटेंसेस प्लीज? कैन एनीवन यूज दिस वर्ड स्पेल बाउंड? A simple word it is, but you can use in your daily lives. Harshita, I'm unmuting you. Ramila was singing very small word song. Please come again. Ramila was singing very small bound song. स्पेल बाउंड किसी को जो फीलिंग आती है उसको हम कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन मीरा वाज सिंगिंग, आई वाज स्पेल बाउंड बाय दैट. जब मीरा कोई गा रही थी गाना, तो उसको सुन के मैं स्पेल बाउंड हो गई. ओके, सो यू कैन यूज दैट कि आप किसी को कोई जो फीलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम स्पेल बाउंड कहेंगे, ठीक है. ओके हर्षिता, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कैन एनीवन एल्स यूज इट? ओके अंशुल, आई एम अनम्यूटिंग यू. Our national anthem is very spellbound. नो, यू व्हेन यू जो फीलिंग उसको आप कहोगे, उसको आप स्पेल बाउंड कहोगे. नेशनल एंथम स्पेल बाउंड नहीं होगा, ठीक है. आप कैसा फील करोगे वो स्पेल बाउंड होगा. ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन आई हर्ड द इंडियन नेशनल एंथम, आई वाज स्पेल बाउंड बाय दैट. जब मैंने इंडियन नेशनल एंथम सुना तो आई वाज स्पेल बाउंड बाय दैट. किसी इंसान को जो फीलिंग आएगी, दैट इज कॉल्ड एज स्पेल बाउंड. कैसी वाली फीलिंग? बहुत ज्यादा फैसिनेटेड वाली, बहुत ज्यादा अच्छा फील करने वाली, उसको हम स्पेल बाउंड कहेंगे, ठीक है. Okay, so next one is मैं ये हो सकता है बोलिए. when I saw a white elephant, I was very spellbound. When I saw a white elephant, I was very, yeah, so similar. जैसे कि when I saw a white tiger, I was very spellbound. Okay, Aditya, sorry, Anshul, please mute yourself. Yes, Aditya, I'm unmuting you. I was spellbound about the trip of Himalaya. Yeah, so I was spellbound about the Himalayan trip. Okay, okay, please mute yourself. Okay, so let's move on the next one. Next one is dwindle. Okay, so dwindle, कोई भी चीज dwindle होना मतलब कोई भी चीज कम हो जाना, कोई भी चीज घट जाना, कोई भी चीज diminish हो जाना, तो उसको हम कहेंगे dwindled. Okay, for example, the community of the tigers is dwindling. Okay, जो number of tigers हैं जो वो है वो कम हो रहे हैं, वो घट रहे हैं, so that is called as dwindling. कम होना कोई भी चीज. Okay, can you use this word in your sentences? Dwindle is also a very simple word. Dwindle हो जाना, dwindle is the second form of it. Okay, so dwindle कर जाना मतलब कोई भी चीज कम हो जाना. For example, okay, you give me the examples now. I have given you one example that the numbers of tigers are dwindling in the society. Anshul and Aditya are again raising their hands. Anyone else knows the meaning, please? Anyone else can use this sentence? Dwindle कर जाना, कोई भी चीज dwindle कर जाना. Anyone else can tell me the meaning, or anyone else can use the word in the sentence? Okay, let me unmute anyone if I may. Okay, Bhavesh, I'm unmuting you. Yes, Bhavesh. The trees in our society are dwindled. फिर से बोलो. The trees in our society was dwindled. The trees in the society are dwindling. Okay, वो कम हो रहे हैं. Okay, okay, please mute yourself. Wait for a second, children. What is this noise? Okay, so next one is galloped. Okay, 38. Okay, galloped it is. Yeah. So gallop का मतलब ये भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं. Gallop का मतलब होता है, अरे प्लीज दिस नॉइज, no one
Sorry, there's मेरे यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, so just pardon that. Okay, so next one is galloped. Galloped का मतलब क्या है? कोई भी चीज दौड़ जाना. एक दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि घोड़े को आप एकदम से छोड़ देते हो तो उसको जो एकदम से दौड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज गैलोपिंग. कोई भी चीज जो एकदम से दौड़ जाती है उसको कहते हैं गैलोपिंग. और वो जो जगह होती है जहाँ पे आप खड़े, आपने बहुत बार देखा है जहाँ पे हॉर्स राइडिंग या हॉर्स रेसेस चल रही है, तो उस जगह को भी हम गैलोप बोलते हैं. ठीक है. So what has someone written in the chat room? शिवम मनियार हाय लिखा है आपने. कुछ प्रॉब्लम है आपको? बोलिए शिवम मनियार, प्लीज रेज योर हैंड. यस शिवम, कोई प्रॉब्लम है प्लीज बताइए. ओके ठीक है. तो गैलप का मतलब हमारे पास दो तरीके से हो गया. एक तो वो जगह आप जहाँ पे हॉर्स रेसेस या हॉर्स राइडिंग खड़े होके देखते हो. और गैलप जो वर्ब है उसको हम कैसे यूज करेंगे कि एकदम से कोई स्पीड से कोई चीज चले जाना, दौड़ जाना फटाफट से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द हॉर्सेस गैलप्ड इन द रेस. जो हॉर्सेस थे वो रेस के अंदर गैलप कर गए, जल्दी से स्पीड से दौड़ गए. ओके. नेक्स्ट वन इज इलेशन. इलेशन का मतलब है कोई व्हेन समवन इज वेरी हैप्पी. when someone is elated means when someone is very happy about something. ठीक है. और elation का मतलब होगा happiness, खुशी. ओके. elated का मतलब होगा कोई आदमी खुश होना, और elation का मतलब होगा खुशी. Okay, so for example, when I won the race, I felt elated. जब मैंने रेस जीती तो मैं बहुत elated फील कर रहा था, बहुत हैप्पी फील कर रहा था. Okay. Next one is pound. When pound, जैसे फॉर एग्जाम्पल my heart was pounding. मेरा जो दिल था वो धड़क जोर जोर से पाउंड कर रहा था. धम धम जो आवाज आती है ना, उसको हम कहते हैं पाउंडिंग. ओके. my heart was pounding. ओके. एक जो आपका पाउंड होता है, जो हम पैसा होता है कि जो इंग्लैंड में यूज होता है पाउंड. ओके. जहाँ डॉलर्स यूज होते हैं, कहीं पे पाउंड्स यूज होते हैं. एक इज दैट पाउंड, और दूसरा पाउंड क्या हो गया? एकदम से धम धम से आवाज आना. ओके. माई हार्ट वॉज पाउंडिंग व्हेन आई सॉ द हॉर्सेस रेसिंग. जब मैंने हॉर्सेस को दौड़ते हुए देखा, माई हार्ट वॉज पाउंडिंग. मेरा दिल जो है वो जोर जोर से धड़कने लगा. ओके चिल्ड्रन, is anyone having any doubt in today's class? And please turn your cameras on faster. Everyone, please turn your cameras on.